So welcome to another episode of Ed J Show. In this super special episode, we have a super talented guest. She's a very versatile, talented singer, a songwriter, a performer. She sings in 3 languages, English, Hindi and Punjabi. So welcome Hema Dangi on Ed J Show, popularly known as Kaki Singer. So बहुत बहुत स्वागत आपका इस पॉडकास्ट शो में. Thank you so much for inviting me. Okay, so before we start off, I would like to know, after such this particular young age, that you have made a remarkable, achievement in this particular music space. आपका ये सिंगिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट किस तरह से जागा, ये अगर थोड़ा मैं जानना चाहूंगा. अच्छा, एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा. यू आर फ्रॉम उदयपुर, राइट? जी. यस यस, प्लीज गो ऑन. ओके. सिंगिंग सर मैंने स्टार्ट की थी जब मैं 8 or 9 समथिंग. आई जॉइंड लाइक अ म्यूजिक क्लास, हिंदुस्तानी म्यूजिक क्लास, लाइक शास्त्रीय संगीत क्लास. सो बैक देन, टू बी ऑनेस्ट, मेरा ऑब्वियसली इंटरेस्ट रहा होगा, तभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज्वाइन किया. बट उस टाइम ना लाइक चॉइस नहीं होती थी, लाइक कि मम्मी पापा ने कहा है कि अगर ज्वाइन करनी है तो इट्स नॉट लाइक कि चॉइस है मेरे पास, मुझे ज्वाइन करनी पड़ी. तो उस टाइम मुझे इंटरेस्ट आ गया था. एज ऑफ like 1-2 days I joined the class and I got like interest in music. I continued the music till 6 years. I learned Indian classical music, and after Okay. that I joined Talents Over to like join as a pop singer. ओके, सो आपने शायद कहीं पे जैसे वोकल ट्रेनिंग और कई कॉम्पिटिशन्स पे भी पार्ट लिया था. व्हाट आई केम टू नो अबाउट यू, आप थोड़ा बता सकते हो उसके बारे में? I for first 4 or 2 years I did not like take part in any competitions or anything. After 4 years when I was confident कि like अब मैं किसी भी चीज में पार्ट कर सकती हूँ, first competition I took part in was Prayag Sangeet Samiti Okay. from Allahabad. That was exactly the institute I was taking a degree from to, like for music. I have complete my Sangeet BA equivalent in that particular university. So first time मुझे वहीं से अपने इंस्टीट्यूट से ही पता पड़ा था कि वहाँ पर एक कंपटीशन होता है. So we tried to like just give it a shot first. Okay. At first, when I tried it first for first year, I was in junior vocal something called that. And उस time मुझे first time जब मैंने participate किया था तो third prize आया था. The next Okay. year I tried again and I got like first prize in that vocal. Oh, singing. nice. And after that I gave a competition in Pune and another one in Agra. Both place in Agra I got first place. In Pune I got third. Okay. सो आप जैसे बता रहे हैं उदयपुर शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल संगीत, तो मेरे दिमाग में ना वो बंदिश बैंडिट्स का सीजन चल रहा है. just kidding. So anyways, उसके बाद जैसे आपका सफर आगे बढ़ता गया, आपने उस टाइम पे, मैं नो आप आपकी स्कूलिंग ऑफ कोर्स साथ में चल रही होगी उस टाइम पे. आपने किस ईयर में फिर आप पास आउट हुए? ओके. स्कूलिंग मैंने 11th तक एज ऑफ पब्लिक स्कूल में की. अभी भी मैं एजुकेशन तो ऑब्वियसली मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. आई एम डूइंग माय बैचलर्स 3rd year in English literature honors. Okay, English honors. Yeah. As of 11th, in my 11th grade, I decided that I wanted to join Talents Over and I wanted to be a pop singer. And Okay. उस टाइम पे मुझे एज अ रियलाइज हो गया था. बिफोर दैट आई वाज आल्सो कंटिन्यूइंग कि लाइक मैं म्यूजिक कर रही थी और फिर मैं एजुकेशन कर रही थी, राइट? तो आई नो कि डिफिकल्ट होता है एज ऑफ कि अगर मुझे सिर्फ म्यूजिक में करियर बनाना है तो आई कांट जस्ट कंटिन्यू कि मैं लाइक 2 बजे तक स्कूल जाऊं, फिर उसके बाद के अंदर मैं फिर इतने से टाइम के अंदर अपनी करियर भी बना दूं. तो आई न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल बैक देन. सो आफ्टर 11th आई joined like private education. I left my public school. After that I'm like fully into music. Okay, so आपने जैसे बताया इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन जो आप जैसे बता रहे हैं, सो लाइक हाउ मेनी इयर्स आर लेफ्ट फॉर दैट? How many years I mean? कितना टाइम बचा है? वो हो चुका है? यू हैव डन द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एवरीथिंग? Okay, I'm doing my bachelor's 3rd year, so it's like the last year of my bachelor's. I'm thinking of like continuing to masters and everything. ओके, तो साथ में कॉलेज में भी आप ऑफ कोर्स परफॉर्म वगैरह भी करते होंगे. विल बी क्वाइट पॉपुलर इन योर कॉलेज. No, I'm not in a college. I'm doing private. कॉरेस्पॉन्ड. ओके, प्राइवेट वैसे कर रहे हैं. ओके, Okay. फाइन. नो, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज व्हाट आई वाज वंडरिंग, क्योंकि अगर साथ में अगर आप कॉलेज भी अटेंड करो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना. एंड It यू would आर be, डूइंग yeah, it would be like impossible basically. impossible, of course. Yeah.
And it was at performing and doing this creative work at such a massive level. तो साथ में education, that's why I asked this question. तो आप साथ में अपना, but it's really great, आप साथ में अपना education वगैरह भी continue कर रहे हैं. Yeah, I think it's important कि I don't know whatever career you're like pursuing, at least as of my age, when I'm like 20, 21. So I think it's important कि आप अपनी education हमेशा continue करते रहें. I think सीखने को हमेशा कुछ और बहुत होता टाइम है, you have plenty of time, and same voice artist, electronics and communication engineer. Just kidding. Anyways, you have plenty of time, and now may I know about this talents of world, right? If I'm not wrong, if I spelled it right. ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कैसे जुड़े, और उन्हीं के साथ आपने जुड़ के शायद अपने अपने वीडियोस वगैरह, जो आपके म्यूजिक वीडियोस या एल्बम्स कह सकते हो, आपने लॉन्च किए, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? The first time I met Tenso World was in 2018. उस टाइम मैं आई थिंक 11th मैं 11th में आई ही थी, या फिर it was the end of 10th or something. It was that time, and I don't Tenso World got to know me first. Like I did not know Okay. what Tenso World was first. They approached me and they knew I was like they're from the same city. Like Tenso World has one base of like Rajasthan and Udaipur. उदयपुर, And ओके. जी उनकी जो टीम थी उन्होंने फर्स्ट लाइक मुझे अप्रोच किया था, एंड दे न्यू दैट आई वाज एन आर्टिस्ट. बैक देन आई यूज्ड टू लाइक सिंग डिवोशनल सिंगिंग. आई हैड जस्ट wrote my first English song back then. Oh, And nice. it was yet to be released. It was not even released back that time. So they only knew me from devotional singing. So they were like, someone told me, someone from their team, कि यहाँ पे उदयपुर के ही अंदर एक आर्टिस्ट है, and if you think you should join. तो उनका मेरे पास first time उन्होंने मुझे approach किया था, and obviously I saw like their website, and I saw they had back then 7,000 plus artists international. So like Okay. from first time my father and I watched their website and everything, and we were like we wanted to join back then. Yeah, so for networking, collaboration, a lot of opportunities come, right? जिस तरह से आपने वेबसाइट वगैरह देखी, तो उसके बाद आपने, if I'm not wrong, 2019 जी आपने अपना पहला, जैसे हम म्यूजिक वीडियो कह सकते हैं, कवर सॉन्ग कह सकते हैं, वो आपने लॉन्च किया था. आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो? आई वुड लाइक टू, माय सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, माय ऑफ कोर्स लिसनर्स वुड लाइक टू नो अबाउट इट. Okay, so first song that I wrote was Someone Like You, but for some reasons, and it was released on YouTube back then. But for now, we have removed the original version of Someone Like You. 2019, I released my first music video on manixon.tv. It was called The Ace. It was The with Ace. Audio Trackers, DJ Audio Trackers. DJ Audio Trackers. Okay. He's not from India. He is I think he's from UK or something. I'm not very sure about that. The first music video was The Ace. Back then हमने तब तक Someone Like You remove कर चुके थे. We re-released Someone Like You after The Ace. Okay. So my first song that I wrote was Someone Like You, but the first song that is released is The Ace. For music videos, I think I have released around 16 to 17 music videos. 16, 17, okay. Yeah, you can see my music videos on Apple TV, Nanixon TV, XMLoops.tv, or some videos of mine are released on Vivo. Vivo. You can see Okay. the music videos are around 16 to 17. As of songs, just audio songs, I have released around 24 to 25 songs. Okay, 20 to 20. Okay, nice, nice. ये ज्यादातर कौन सी लैंग्वेजेस में आपने करे हैं जैसे सॉन्ग्स? Most of my songs you'd see are in English. Okay. Or many of my songs are in Hindi too. I generally try to mix like a fusion version. Okay. So English Hindi तो normally रहता है. Some of my cover songs are in Punjabi. Okay, it's in Punjabi. Really nice talking to you. So anyways, coming on your stage performances, आपने कहाँ पे, जैसे आप of course as a performer कहीं पे, कई जगह पे आप travel करते होंगे? As of now मुझे उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि I just had my first live performance as a pop singer in like July 23rd July. I had my like first performance as a pop singer. No, I mean to say concerts वगैरह आप करते हैं, वैसे मैं पूछ रहा था. That's what I'm saying. Okay. I just had my first live performance like back in just this July. This July you had. Okay. So any further plans you'll be traveling or anything like that? Yeah, if need be. I had offers from different cities and everything, but before this I was like preparing my catalog because I wanted to be a pop singer, no? So अगर मुझे as a pop singer कुछ perform करना है, तो I have to make my own original songs, like a whole Definitely. catalog.
सो इससे पहले मैं वो प्रिपेयर करी थी। अभी अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कोई ऐसी लाइव इवेंट्स होते हैं जहाँ पर, जो ऑब्वियसली मेरे स्टैंडर्ड के होते हैं एज अ पॉप सिंगर, तो आई वुड go to different cities or different countries for that. Yeah, different countries, definitely. Any memorable experience, any collaboration with any, if you're featured as an artist or किसी के साथ, कैसे बड़े artist ऐसे आपके साथ कुछ हुआ ऐसा fusion type or collaboration type you would like to share? I have collaborations with मैंने बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज के आर्टिस्ट के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, मैंने इंडियन आर्टिस्ट के साथ भी कोलैबोरेशन किया है। एज ऑफ मेमोरेबल अभी मेरा रीसेंट सॉन्ग है एक माई गर्ल, जिसके अंदर एक कोरियन आर्टिस्ट सिंगर और रैपर फीचर करते हैं, टैब। Okay. His name is Tab, and Okay. he's a very talented artist. उनका सिर्फ एक छोटा फीचर है in the back of the song, in the end. It's like a bridge of the song. Other than in Hindi artists, I have collaborated with Rahul Jain. Rahul He Jain. had a song called "जो होगा अच्छा होगा." I featured in that song. मैंने उसके अंदर कुछ English words लिखा था. As of different artists, I have collaborated with Asher Music. He's a music producer from London, UK, and he made music for one of my songs, "Come to Me." It's released on 9XM.tv and different platforms of mine. And uske alawa, I think I have collaborated with One Theory, Someone Like You, and Believe in God. Oh, nice. So, coming back on your further music videos and everything. Okay, now this is a different topic. So it's totally different. Now, in the era of, you are a songwriter plus आप music वगैरह compose करते हैं, you are a singer. Uh, a topic जिस पे बात ना हो, even in the creative aspect, creative field, that is artificial intelligence. Yes. So, do you use any such AI tools अपने आप कुछ सॉन्ग लिखने के लिए? Of course, अपनी ओरिजिनलिटी अलग चीज होती है, बट कभी कभी हेल्प मिलती है उसमें, ऐसा कुछ आप यूज करते हो नहीं करते हो? As of now, मेरा हमेशा मानना है कि कुछ भी अगर कुछ नया आए और कुछ इनोवेटिव आए तो आई वुड यूज इट, इट्स नॉट दैट थिंग। बट अभी तक एज ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन मैंने अभी तक कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है। एज ऑफ सॉन्ग्स आई एम ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स। आई हैव यूज्ड चैट जीपीटी फॉर लाइक सॉन्ग राइटिंग। बैक देन Songwriting. जब नया नया आया था ना, तो आई सर्च की इसमें क्या कर सकते हैं ऑब्वियसली। सो आई ट्राइड वन सॉन्ग रैप फ्रॉम दैट. I tried like different rap lyrics for that song. I was searching for ideas, so I did use like one or two lines from that AI software. ओके, तो हाँ मतलब थोड़ी बहुत वैसे मदद मिल जाती, मतलब वरना। Yeah, because the thing is कि जब वो songs लिखते हैं ना, तो उसके अंदर you have a vision. When you make a song, you have a vision. It does not like conform with the vision कि जो आपने सोचा है वो सेम चीज उसमें मिलेगी नहीं आपको. वो सोल लाना मुश्किल है। Yeah, yeah. तो एक आर्टिस्ट अपने दिल से कोई चीज लिखता है, चाहे वो लिखना हो या कुछ गाना जो भी कंपोज करना हो, तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं लिमिटेशन आती है। हेल्प जरूर मिल सकती है, थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल Yeah. सकती है डेफिनेटली। सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन इन म्यूजिक एंड ऑल, अभी और आपका ऐसे कुछ प्लान है कि और भी आपको कई चीजें सीखनी है, एनी इंस्ट्रूमेंट और एनीथिंग लाइक दैट? And in instrument, I don't know. अभी तक कोई plans नहीं है मेरे. I play an instrument called GeoShred. It's like a software instrument I play in my iPad. Obviously, I have अभी जैसे if you listen to my music, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ genre fix नहीं होता कभी भी. तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि कोई भी अगर डिफरेंट जॉनर मुझे पसंद आता है तो मैं उसको सीख लेती हूँ और फिर मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो एज ऑफ लर्निंग कुछ नया, तो आई थिंक वो हमेशा जब तक मेरा करियर चलेगा मैं कुछ ना कुछ तो नया कुछ ना सीखूंगी। कुछ सेल्फ लर्निंग तो उसमें होती रहती है, और वो अपने ऑफ कोर्स इनोवेशन के सही, क्रिएटिव फील्ड ही ऐसी है परफॉर्मिंग आर्ट्स की, कुछ ना कुछ हर दिन ऑफ कोर्स हर फील्ड में कुछ ना कुछ सीखना होता ही रहता है डेफिनेटली। As of instrument, I don't have plans of right now. I'd love to learn violin maybe someday. I am interested in violin. I do play a bit of guitar and ukulele. And नाइस other than that, I don't have plans as of now. But कुछ भी हो सकता है, बाद में कुछ भी इच्छा हो सकती है ऐसा। डेफिनेटली। एंड व्हाट अबाउट रिकॉर्डिंग एंड ऑल? जैसे कभी कभी जैसे आप घर पे होता है ना, कभी कुछ ट्राई करने के लिए कुछ नई बीट आती है, सो ये ऑफ कोर्स ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सारा ऑडियो इंजीनियरिंग एंड ऑल, वो तो सब आप मैनेज करते होंगे अपने घर पे? यू हैव अ होम सेटअप घर पे जैसे आपका? I don't have a full home setup. I do recordings like after going in a studio or something. I have अब जैसे मेरी कुछ आप Instagram वगैरह पे रील्स वगैरह देखेंगे, जो मेरी यस यस रील्स यस। हैं जो मैं रेगुलर पोस्टिंग के लिए यूज करती हूँ। आई मेक दैट एट माई होम। मेरे पास सॉफ्टवेयर है ऑब्वियसली, मेरे पास रिकॉर्डिंग सेटअप है ऑब्वियसली, उन सब का मैं यूज करती हूँ। बट जब मुझे प्रोफेशनल कुछ रिकॉर्ड करना तो आई गो इन द वो स्टूडियो, तो फिर स्टूडियो में जाते हैं। स्टूडियो में। अदरवाइज यस, आई मिक्स एंड मास्टर some of my songs, and थोड़ा बहुत काम मैं अपने घर पे करती हूँ। मैक्सिमम ऑफ माई सॉन्ग्स आर रिटन इन लाइक माई।
I write songs in my own mic setup, and then I like make a sample, and then I go to the studio. मतलब जो फाइनल रिकॉर्डिंग होती है फिर आप वो स्टूडियो में जाके Yeah, करते हो? yeah. बिकॉज डेफिनेटली इन एन आर्टिस्टिक क्रिएटिव माइंडसेट, आप विद दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, तो कहीं ना कहीं घर पे आप जैसे एक्सपेरिमेंट, कोई अचानक कोई ट्यून आ गए दिमाग में, उसको रिकॉर्ड कर लिया, कोई लिरिक्स लिख लिए, ऐसा कुछ होता रहता Yeah. होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन दिस, एनी इफ आई टॉक अबाउट कोलैबोरेशंस इन विद अब तो जैसे आपने कहा कि इतने इंटरनेशनली कई जगह पे इस तरह से कोलैबोरेट वगैरह किया हुआ है, एनी प्लान्स की आपका? ऑफ कोर्स मैं नहीं कहूंगा, हर आजकल तो एक म्यूजिक ऐसी चीज हो गई, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका एक शहर स्पेसिफिकली कि मुंबई में ही जाना जरूरी है, बट वहां आपको कोई ऐसा कोई प्लान, कोई मतलब आपका होता है ना जैसे? Um, नॉट एज ऑफ नाउ, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, और आई डोंट थिंक मुझे अभी तक नीड भी लगी। नहीं लगी? स्टार्टिंग में सब कहते हैं कि अगर आपको म्यूजिक में करियर बनाना था, जैसे नहीं कि नहीं आप। नहीं, दैट टाइम इज गॉन भाई। होता है ना कभी कभी आप बहुत पॉपुलर हो जाते हो तो कहीं ना कहीं डिमांड आने लगती है, उस हिसाब से मैं कह तो रहा हूँ। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे मुंबई जाके ही सेटल होना पड़ेगा या फिर समथिंग। अगर कोई कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी है किसी प्रोड्यूसर के साथ जो मुंबई के अंदर है, तो आई वुड जस्ट ट्रैवल एंड आई वुड कम बैक। आई थिंक ट्रैवलिंग एवरीथिंग इज फाइन। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मुझे वहां जाके रहना है, टू बी ऑनेस्ट। उदयपुर जैसे क्या जानते हैं, काफी शांत सा शहर है, तो आई लाइक दैट सराउंडिंग ऑफ लाइक एज ऑफ माई क्रिएटिव विजन, माई पर्सनल लाइफ टू, आई लाइक दिस जो शांत सी जगह है के अंदर रहना। आई डोंट थिंक आई कैन लिव इन मुंबई इफ आई एवर वांट टू। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए वो जैसे मुंबई में एक होता है ना, काफी जगह से, जैसे उदयपुर, जोधपुर हो गया, देहरादून हो गया, जैसे उत्तराखंड साइड से भी लोग जाते हैं। वही होता है, अपॉर्चुनिटीज है, अगर अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है तो फिर सोचा जा सकता है कि हाँ, या कुछ टाइम रुका जाए। तो ऑफ कोर्स आई कैन से ऑल डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटीज, मतलब आपने अपने जगह आप यू डोंट वांट टू सेटल इन मुंबई, बट हाँ अगर कोई अच्छी कोलैबोरेशन होता है तो वहाँ पे हो सकता है, डेफिनेटली। And yeah, it was great to have you on this show, and specifically really inspired कि आप इस तरह से इतनी कम उम्र में आपने इतना कुछ एक मुकाम इसमें हासिल किया है। एंड आपका हर जगह जो हैंडल है, हर एवरीवेयर इट्स बाय द नेम काकी सिंगर, राइट? Yes, it's by Pakistan. So I can say it is your personal brand, by you are recognized by this Yeah. particular name. Yeah. Kaki was a name that we chose because Hema is very common name. You can find it in India. If I wanted to like make a brand of my name, I needed a name that is very catchy and very easy to pronounce for anywhere in the world, and a name that is not used before. Right, so Okay. we chose the name Kaki, and अब जहाँ पर भी मेरे प्लेटफॉर्म्स पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, आर्टिस्ट नेम काकी है, तो उसी नाम से ब्रांडिंग होती है। तो ये ठीक है, इट्स वेरी समथिंग वेरी इनोवेटिव लाइट, बट ये नाम कैसे आपका मतलब स्ट्राइक हुआ, जैसे मतलब होता है ना जैसे कुछ ऐसे अपने अपना नाम सोचा? नहीं, no, actually, I get this question a lot कि why काकी। तो we don't have a reason. It's not like कि काकी का कोई मीनिंग है या फिर मीनिंग होता है, ओके। yeah, it's there is no nothing like that कि काकी का कोई मीनिंग वगैरह है। We just chose a name that was easy and it's very short. Like काकी is very easy to pronounce for anyone who is in India or anyone who is international. अब्रॉड, इवन अब्रॉड, या Yeah, so it's very easy to pronounce and it's very catchy. अगर मैंने किसी को कहा है कि name is काकी, तो they will remember the name. It's श्योर just श्योर। एंड वन मोर थिंग, आई सॉरी आई फॉरगॉट टू आस्क दैट, इन उदयपुर एंड ऑल, आपको कई बार ऐसा होता होगा आपको रेडियो स्टेशंस वगैरह में भी कभी आपने परफॉर्म किया, इनवाइट किया गया, थोड़ा उसके बारे में आप बता सकते हैं? एज ऑफ नाउ मेरे सॉन्ग्स कुछ रेडियोस के अंदर प्ले किए जाते हैं। मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, अभी मैं उनके नाम नहीं ले सकती नहीं नहीं, ऑब्वियसली। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। इट्स ओके। तो अभी मेरे सॉन्ग्स क्यू फॉर रेडियो, शिकागो के एक रेडियो क्यू फॉर रेडियो के अंदर मेरे सॉन्ग्स प्ले होते हैं। मेरा हर सॉन्ग लगभग वहाँ प्ले होता है। वंडरफुल। रेड एफएम के साथ, दिल्ली के साथ हमने कोलैबोरेट किया था एक टाइम पर, जब हमारा जेबर्ट के साथ एक सॉन्ग रिलीज हुआ था। We featured on that radio. Okay. No, really nice, so, thank you so much for coming on this show, and it was great to have you. Thank you We so much. wish you all the best for your future. And you were saying something? Yeah, please go on, please go on. Yeah, I'm just saying that thank you very much for inviting me, and it was great to talk to you. And मैंने notice किया कि आपने like बहुत अच्छी music के बारे में conversation की. It was a great time. No, it's already as I told you, मैं तरह तरह के जैसे इंटरव्यूज करते रहता हूँ, आई हैव कपल ऑफ पॉडकास्ट, मेरे मतलब 2-3 पॉडकास्ट है, कहीं ना कहीं वो एक वॉइस इंडस्ट्री के बारे में, पॉडकास्ट इंडस्ट्री के बारे में, बट कहीं ना कहीं मैं जैसे पास में मैं अपने, आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ अ म्यूजिशियन, बट कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट जरूर रहा है।
एज ऑफ नाउ आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट, आई एम अ पॉडकास्टर, बट मैंने जैसे सूफी म्यूजिक सीखा हुआ है, तो मुझे हमेशा एक इंटरेस्ट रहता है एक सिंगर से बात करने में। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, और आप इसी तरह से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एंड आप इसी तरह तरक्की करते रहें और और आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। थैंक यू वेरी